So we are going to go live on Facebook in two ticks. सुबुही कहाँ से हैं? मैं कहाँ से हूँ, एज इन अभी लाइव कहाँ से हूँ? हाँ जी, मैं इट्स एक्चुअली अ गुड क्वेश्चन बिकॉज मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हरियाणा में है एंड माय वर्क सेंटर इज दिल्ली. तो हम लोग दिल्ली जयपुर हाईवे पर मिडवे रहते हैं, तो वहीं पर से मैं लाइव हूँ फिलहाल. और कश्मीर में कहाँ से हैं? वैसे आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मेरठ, उत्तर प्रदेश, और अदरवाइज आई एम अ लॉयर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, social activist. So guys, we are going live on Facebook now. Thank you. Namaskar, everybody, and welcome to today's very special webinar on the poignant day of World Refugee Day. So we have a very eminent panel here who we are going to introduce in a minute. But on behalf of Global Kashmiri Pandit Diaspora, I welcome you all. Now, a refugee is a person who has been asked to leave their country for reasons of persecution, be it religious or other social or other factors. So in that sense, Kashmiri Pandit community has a special place in the whole refugee status, because we are refugees, or more importantly, you can call us internally displaced people within our own country. And 31 years later, the situation remains unchanged. So to talk about this and other matters, we've got a panel here. And today we stand in solidarity with all the refugees of the world. And we are also a part of the global refugee community, unfortunately. So on that note, I would like to introduce the moderator for today. The moderator for today is Ajay Chaudhary ji. Namaskar, Ajay Chaudhary ji. Ajay Chaudhary ji is GKPD coordinator for Germany, and he is based in Berlin. So over to you, Ajay ji. Ajay ji, you are mute. Can I ask you to unmute yourself? Thank you. Okay, can you hear me now? Yes. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Today, while the world is observing World Refugee Day, we 500,000 Kashmiri Pandits have taken a resolve today and pledged that we will keep on pressing our issues to the government of India and to the world bodies under the Constitution as well as under the UN Charter. And as you know, our genocide as well and subsequent exodus from Kashmir was called migration at that time. That government and its ecosystem that time, and the same ecosystem is still existing and is referring us as migrants in the official documents like ration card of the Union Territory of Jammu and Kashmir. And the same ecosystem with its malified intentions has brought thousands of Rohingya refugees into Hindu majority Jammu with so as to change the demographics of Jammu. And this is the one side of the system, and call it dichotomy or the legal duplicity. And we have on the other side 2 million refugees, which are basically economic immigrants coming to Europe in 2015, and they had made a transit point and Turkey pushed them to Europe, and as a result they are using and misusing the liberal social benefit schemes of Europe and getting settled and expanded all over Europe, and which is resulting in high criminality and demographic changes and other problems for the Europe in as a whole. And with these two conflicting things and its dichotomy, we are here to discuss, and we are very proud to have a distinguished panel with us. And we have with us Mr. Firoz Bakht Ahmed, historian, writer, scholar, and he is the Chancellor of Maulana Azad
Urdu University, Hyderabad. He is also the great grandnephew of Maulana Azad, our first education minister. We are very thankful to him. We have Miss Subuhi Khan, a Supreme Court lawyer and social activist, and a very active media panelist. We see her almost daily in one or the other TV channel. We have Mr. Amjad Ayub Mirza, our dear friend from England. He is very active on YouTube nowadays. He's also having his own Radio Himalaya daily short news channel, and he's trying to expose the deep state of Pakistan in every way and in every way. And we have also Mr. Rakesh Kolji. He is a writer as well as a questioner from United States, and he is our strategic affairs thinker of GKPD. And we have also Utpalji. Mr. Utpal Kol is not a new face to us. We know him since 50 years of social service, writer, publisher based in Delhi, and GKPD coordinator. So without wasting time, I want to start with Ms. Subuhi ji, but before that, I want to give a few minutes to Rakesh ji to explain us the reasons why we have not been able to put our case and explain to the world as a whole and Indian government in general, why we are still called migrants. It's almost 31 years we have lost our ancestral place, and to give the brief summary of the matter, I give the table to Mr. Rakesh Kol. Rakesh ji. Namaskar to everybody, and Shafalika ji and Ajay ji, I commend you for hosting this program on World Refugee Day. Ayush, WhatsApp, dekho WhatsApp. Dr. Amjad Ayub Mirza ji, Feroz Bhakt Ahmed ji, we are humbled by your participation. You both are very eminent in your fields. You have been important voices. And Subuhi ji, it's a joy to know that you're a Supreme Court lawyer. My father was in the Supreme Court before he was sent on delegation to start and open the Delhi High Court. So I feel connected to each one of you through your works. Let me, I've been in this fight like all of us since 1990. And so I sort of want to give an answer in terms of the long arc of our people's history. And Aditi, in answer to your question, I would start first with the Constitution of India. You referred to it. The Constitution of India, that Subuhi ji only knows so well, starts with these words. India, that is Bharat. India, that is Bharat. And I want to tell you a story that most Indians know. Shakuntala brings her son Bharat to his father, King Dushyant, who has forgotten about his affair. And he says, I don't recognize you as my wife. I don't recognize this boy. Go away. And then this voice appears. The Devi Vani appears from the sky. The celestial voice appears and commands the king and says, Bharat Bharan. Bharan meaning to fill up, to respond to what was asked. So the idea of Bharat is, it is a country where the ruler's duty is to care for his subjects. It is a beautiful Bharat. There is no other country in the world whose name means that the governance has to care for its subjects. So now the first thing we know is that the spirit of the Constitution of India was completely violated when it came to the case of Kashmiri Pandits, because it has been the most uncaring act that one could commit to victims of genocide. Now,
what is the idea of India? Because we understand Bharat failed us. Sometime around 2003, I met then Deputy Chief Minister, Mr. Advani, who had come to the United Nations. And we briefed him on our situation and the fact that there had been no justice given to Kashmiri Pandits. And I remember him telling me in his very firm voice, Kaul Saab, what happens to the Kashmiri Pandits will be a litmus test to the idea of India. So now we know that the idea of India failed the litmus test as far as 2020 is concerned. But the fault is not only that of others. And this is now my tough love message for my own community. And I'll come back later and expand on this. Ultimately, our culture tells us what happens to you is because of your own actions. So I will share with you, I don't know if you can see this Kosher Samachar magazine that in May 1990, published by the Samati in Delhi, has one article after the other article, just 4 months, 5 months after our genocide, exodus, and ethnic cleansing, referring to ourselves as migrants. We ourselves have been confused in accepting what the world told us we were. We did not stay to our truth, irrespective. We called ourselves migrants. And the last factor in our culpability, and I'll turn it over after that to get the discussion started, is BJP. And we will talk more about BJP. I remember in October 20, 1993, Delhi Samati inviting then BJP leader Atal Bihari Vajpayee. He came to this conference, which was terrorism in Kashmir and human rights violation. He exhorted the community to make its voice heard throughout the world. And we responded. We were small in numbers, but we had truth on our side, and we defeated Pakistan and its nefarious propaganda. We kept our part of the bargain. Fine. Atal Bihari Vajpayee became Prime Minister. We have had BJP 7 years in governance. No change in how the dispensation seems. Now, I'm filled with optimism about BJP. I'll talk more about it in the later part of the program. But these were the key players that failed us: the Constitution of India, the idea of Bharat, the leadership, and ultimately even our own sense of our self-identity. Thank you, Rakeshji, for clearing the air on this issue of being labeled as migrant. Now I will go to Subhi ji. Subhi ji, आप जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया कि यूरोप में क्या हाल है, जो कि बेसिकली इकोनॉमिक इमिग्रेंट्स है, यहाँ पे करीब 20 लाख आए और उसमें से हार्डली 10%, यहाँ के कई रिपोर्ट्स कहते हैं कि जेन्युइनली 10% ही थे जो कि सीरियन वॉर के अफेक्टेड थे, बाकी सारे नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया के इकोनॉमिक इमिग्रेंट्स थे।
इसी तरह इंडिया में कई रिपोर्ट्स कहते हैं 20 करोड़, कई रिपोर्ट कहते हैं 2 करोड़। 2 करोड़ से बात चलती है 20 करोड़ तक इलीगल इमिग्रेंट्स बैठे हैं, जो कि बेसिकली इकोनॉमिक इमिग्रेंट्स है। ठीक है, 71 वार में बांग्लादेश हुआ था, उसके उस समय रिप्रकशंस हुए थे, लेकिन वो भी बाद में मैक्सिमम लोग वापस नहीं गए। तो अब आप क्या देखते हैं इसको, जो अभी CAA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले आई थी 1.5 साल 2 साल पहले, क्या वो आंसर है और क्या आप देखते हैं इस सब को? सुबह जी। जी, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा को, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि इतने रेलेवेंट सब्जेक्ट, और ऐसा सब्जेक्ट जो मुझे लगता है कि सब भारतवासियों के लिए एक बहुत कोर इमोशनल पॉइंट होना चाहिए आज के टाइम में, उस पे आप लोगों ने मुझे बोलने के लिए बुलाया। बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद अजय चौधरी जी, आपने मुझे अप्रोच किया और तो ये अपॉर्चुनिटी मिली है। आज वर्ल्ड रेफ्यूजी डे पर हम हमारे कश्मीरी हिंदुओं भाई बहनों की बात कर रहे हैं। इसको मैं एक दुर्भाग्य समझती हूँ, क्योंकि देखिए, आश्रय, रेफ्यूज अपने ही देश में, अपने ही लोगों से, तो ये मुझे एक बहुत ही, जो आइडिया ऑफ भारत की बात अभी राकेश जी ने करी, उस एक बहुत ही पैराडॉक्सिकल चीज है ये, कि दिस इज नॉट व्हाट भारत इज। भारत जो पूरी दुनिया को रेफ्यूज देता है, भारत जिसमें कभी किसी भी तरह की कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी परसिक्यूट नहीं करी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस प्रेफरेंसेस, वहां पे उनके अपने ही लोग परसिक्यूट हुए और एक रेफ्यूजी स्टेटस के साथ जीने के लिए मजबूर हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है जो हमें आज इस पे बात करनी चाहिए। जम्मू में बहुत रेफ्यूजी कैंप्स में आज के टाइम में भी कश्मीरी हिंदू भाई हमारे रह रहे हैं। गुड़गांव में मैं काफी लोगों को जानती हूँ, दिल्ली में काफी लोग रह रहे हैं, और इंटरनेशनली भी दे आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द प्लेस। और उनकी, और इवन आपने जैसे बोला अजय जी अभी, कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में उनके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होता है माइग्रेंट, उसके ऊपर भी मैं बात करना चाहूंगी कि हम कितना ट्रिविलाइज कर देते हैं उस फ्लाइट को, कितना ट्रिविलाइज कर देते हैं हम उस प्रॉब्लम को। और कहते हैं ना कि और जख्मों पे नमक छिड़कने जैसी ये चीजें हैं जो आज के टाइम में 21वीं सदी में हो रही हैं। बहुत बड़ा कलंक मानती हूँ मैं इसको, ब्लॉट मानती हूँ आइडिया ऑफ भारत पे, हमारे भारत की आइडियोलॉजी पे, जो एक नेशनल एथॉस है हमारी कंट्री की, उसके ऊपर बहुत बड़ा कलंक है ये। 30 साल बाद इसके ऊपर बात और ज्यादा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आज हम देख रहे हैं बंगाल में क्या हो रहा है। मैं मानती हूँ कि अब कल कश्मीर में हुआ, आज बंगाल में हो रहा है, कल केरल में होगा। जब तक हम इस पे बार बार बात नहीं करेंगे, कलेक्टिवली एक साथ इस पे आवाज नहीं उठाएंगे, इस इतिहास को समझेंगे नहीं, इसके रीजंस, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसका एजेंडा नहीं समझेंगे, तब तक ये हिस्ट्री भारत के साथ अनफॉर्चुनेटली अपने आप को दोहराती रहेगी। तो इसलिए हमें समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा मैं जेनेरिक वे में जरूर बात करना चाहती हूँ। जब मैंने CAA के समर्थन में, NRC के समर्थन में आवाज उठाई थी और भारत प्रवास किया था, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसको आप एक चश्मे से समझ नहीं सकते। आपको सोशो पॉलिटिकल, रिलीजियस, लीगल, हर तरह के एस्पेक्ट्स को जानना होता है। मैं लिमिटेड टाइम में सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोग बैठे हैं, आई एम श्योर मुझसे ज्यादा फैक्ट्स जानते होंगे कश्मीरी हिंदुओं की प्लाइट के बारे में। कुछ लोग उसके भुक्तभोगी भी हैं, कुछ एक्टिविस्ट्स हैं जो इतने सालों से, 30 सालों से काम कर रहे हैं। तो आई एम श्योर फैक्चुअल बातें आप लोगों को मुझसे ज्यादा ही पता होंगी। बट भारत में एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो इग्नोरेंट है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि भारत में 3 तरह के लोग रहते हैं, नेशनलिस्ट, एंटी नेशनल्स, और एक बहुत बड़ी आबादी है जो इग्नोरेंट है, जो क्लूलेस मेजॉरिटी है। उस क्लूलेस मेजॉरिटी को एक्चुअली पता होना चाहिए कि क्या हुआ 1990s में कश्मीर में और आज क्या हो रहा है, और हम सब उसको वापस करने के लिए या उसका प्रायश्चित करने के लिए क्या कर सकते हैं। ये मैं एक जेनेरिक वे में समझाने की कोशिश करूंगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, कौन कौन से की प्लेयर्स थे। एंड आई वुड लाइक टू रैप इट अप क्विकली, क्योंकि मुझे पता है लिमिटेड समय और बहुत एस्टीम्ड स्पीकर्स भी इंतजार कर रहे हैं मेरे बात बोलने के लिए। देखिए, हम सब जानते हैं कि आजाद भारत का सबसे बड़ा अत्याचार अगर बोला जाए तो कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ उसको बोला जाना चाहिए। जो लोग नहीं समझते हैं शायद इस वेबिनार के बाद समझना उसको स्टार्ट करेंगे। हमारे संविधान के ऊपर, हमारे एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, इवन हमारे समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है जो हमें मिलकर धोने की जरूरत है। पहली अपील मैं इस वेबिनार में आज ये करूंगी कि इसको हम एक्सोडस, माइग्रेशन, एग्जाइल और एक्सपल्शन बोलना बंद करें।
क्योंकि उस तकलीफ को इन शब्दों में आप समा नहीं पाएंगे। कई बार इन सब चीजों में कई बार ऐसा भी होता है कि सिर्फ निकाला गया है, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं के साथ सिर्फ वो नहीं हुआ। कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ है उसके लिए अगर आप जेनोसाइड अल्फाज इस्तेमाल करें तो ज्यादा रेलेवेंट होगा। एथनिक क्लेंजिंग बोलिए, या फिर होलोकॉस्ट बोलिए, या फिर पोग्राम बोलिए। जितने भी सूडो सेक्युलर जर्नलिस्ट्स हैं वो मतलब जो पोग्राम वर्ड बहुत ऐसे हल्के में छिछले स्तर पे इस्तेमाल करते हैं, मैं उनको बोलती हूँ आप कश्मीरी हिंदुओं के लिए ये वर्ड्स इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? उनके लिए आप माइग्रेशन, एग्जाइल या एक्सोडस, इस तरह के हल्के अल्फाजों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं बिकॉज साइकोलॉजी आपको मैनिपुलेट करनी है देश की। आपको उस दर्द को, उस पेन को, उस दर्दनाक इतिहास को अंडर एस्टिमेट करना है। तो पहली अपील मैं कहना चाहती हूँ कि हम अपने वर्ड्स को रिफाइन करें और आगे से जब भी इस इशू पे बात करें, कश्मीरी हिंदुओं की प्लाइट के बारे में बात करें, तो हम इन अल्फाजों का इस्तेमाल करें। मर्डर्स, रेप, स्लॉटर्स, किडनैपिंग, डिसअपियरेंसेस, गैंग रेप्स, और क्या नहीं हुआ। आप जो भी आप अपने इमेजिनेशन में आप जितना अत्याचार इमेजिन कर सकते हैं वो हुआ है कश्मीरी हिंदुओं के साथ, आजाद भारत में, हमारी नाक के नीचे, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। दूसरी अपील मैं आज के युवाओं से ये करना चाहती हूँ कि आप इस चीज को समझें ये क्यों हुआ है। कश्मीर जो है सिर्फ एक ज्योग्राफिकल, एक लैंड, एक जमीन का टुकड़ा नहीं है भारत के लिए। अगर हम बोलें कि भारत गंगा है तो कश्मीर उसकी गंगोत्री है। कश्मीर की एक ग्लोरियस हिस्ट्री है, कश्मीर की एक स्पिरिचुअल रेलेवेंस है भारत के लिए। तो कश्मीर को तोड़ना या कश्मीर को बांटना या कश्मीर को भारत से अलग करने का एजेंडा चलाना एक तरह से भारत की जड़ें काटने जैसा है। यही कारण है कि भारत के विभाजन के बाद कश्मीर इशू को अनरिजॉल्व छोड़ा गया। द्विराष्ट्रवाद की जो थ्योरी है या द्विराष्ट्रवाद का जो एजेंडा है, टू नेशन थ्योरी जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, वो सिर्फ भारत विभाजन पे खत्म नहीं हुए, उसके सीड्स, उसके बीज कश्मीर में छोड़े गए। और कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर से निकालना उसी मास्टर प्लान का एक हिस्सा था। तो ये हमें समझना चाहिए कि जब हम बात करते हैं कश्मीरी हिंदुओं की, हम सिर्फ उस सेक्ट ऑफ लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जिनके साथ अत्याचार हुआ है, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, हम अपने देश के भविष्य की बात कर रहे हैं। बहुत सारे उसमें की प्लेयर्स थे, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व थी उस वक्त के। शेख अब्दुल्ला का एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहती हूँ। उन्होंने अपनी आतिश चिनार करके उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, उसमें उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को मुखबिर बोला है। मुखबिर किसका? भारत का। आप इमेजिन करिए, देश की बात करने वाला इंसान, भारतीय संस्कृति की बात करने वाले इंसान को मुखबिर बोला गया। और यही नफरत थी जो उनके साथ 1990 में उनको दिखाई गई है, और जो भी कुछ उनके साथ हुआ वो इसी कारण हुआ क्योंकि वो प्रो भारत थे। तो इसलिए सब भारतीयों को उनके साथ ये खड़ा होना चाहिए कि भारत की आवाज उठाने के कारण, भारत को प्रोटेक्ट करने के कारण उनके साथ ये हुआ। रेडिकल इस्लामाइजेशन कश्मीर का हो रहा था, बहुत सारे प्लेयर्स थे, जमाते इस्लामी टाइप बहुत सारे थे। मैं सबके नाम नहीं लूंगी, मैं सिर्फ कीवर्ड्स बोल रही हूँ ताकि जो युवा मुझे सुन रहे होंगे वो उस पर सर्च करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। जमाते इस्लामी तो आई थिंक 1987 स्टेट असेंबली इलेक्शन के बाद एक मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट करके एक पॉलिटिकल पार्टी भी बन गया था। तो इस तरह के बहुत सारे लोग कश्मीर के खिलाफ काम कर रहे थे। मिलिटेंट इंसर्जेंसी बहुत ज्यादा रैम्पेंट थी, जिसमें कुछ प्रो पाकिस्तान मिलिटेंट ग्रुप्स थे जैसे हिजबुल मुजाहिदीन, ऑफ कोर्स दे वर आईएसआई स्पॉन्सर्ड, और वो विधर्मी पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा भी स्पॉन्सर्ड थे। और एक प्रो इंडिपेंडेंस मूवमेंट खड़ा किया गया था जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट काइंड्स, जो बोलते थे कि हमें आजाद कश्मीर चाहिए। तो इस इतने सारे की प्लेयर्स काम कर रहे हैं और कश्मीरी हिंदू अकेले पड़ गए थे। तो आई थिंक कैन वी जस्ट इमेजिन देयर प्लाइट कि कैसे वो लड़े होंगे इतनी सारी फोर्सेस से, और किस तरह से हार के, थक के उनको वहां से अपने घर को, अपने परिवार को, अपने समाज को छोड़ के वहां से जाना पड़ा होगा। कितना मजबूर वो हो गए होंगे, किस लेवल तक उनको पुश किया गया होगा, ये बात हमें आज जरूर करनी चाहिए। न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स निकल रहे थे, पोस्टर्स लग रहे थे, मस्जिदों से ऐलान हो रहे थे। 3 ऑप्शंस छोड़े गए थे कश्मीरी हिंदुओं के पास, या तो आप कन्वर्ट हो जाइए, इस्लाम कबूल कर लीजिए, या फिर यू गेट किल्ड, आप अपनी जान गंवाइए, या फिर आप कश्मीर छोड़ के चले जाइए। इन तीनों ऑप्शन में से और कोई चौथा ऑप्शन उन कश्मीरी हिंदुओं के पास नहीं था। एक उस समय का लोकल न्यूज़पेपर था आफ्ताब करके, उसमें लिटरली मतलब प्रिंट मीडिया में जो है हिंदुओं को जान से मारने की धमकी और कश्मीर छोड़ने की धमकी दी गई थी। देखिए, जब भी मैं पढ़ती हूँ कश्मीरी हिंदूज के बारे में, बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हैं, उदाहरण है जो मैं आपको दे सकती हूँ जो उन लोगों के साथ हुआ।
अब कुछ नाम अगर छूट भी जाते हैं तो मुझे लगता है कि वो अन्याय होता है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर कुछ ऐसे लोग सुनेंगे जिनके परिवार वालों ने अपनी जान गंवाई है, उनका नाम हम नहीं ले पाए, तो दे विल फील कि भाई हमने भी हमारे लोगों ने भी अपनी जान गंवाई है। लेकिन मैं कुछ एग्जांपल्स आपको क्विकली एक पैटर्न दिखाने के लिए देना चाह रही हूँ। एक टीकालाल टप्पू जी करके एक बीजेपी लीडर थे, उनको उनके घर के बाहर मारा गया था। एक रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू जी थे जिनको दिन दहाड़े मारा गया था, और ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि ये वही जज थे जिन्होंने मकबूल भट्ट को सजाए मौत दी थी, डेथ सेंटेंस दिया था। मकबूल भट्ट जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के फाउंडिंग लीडर्स में से था, तो उसको डेथ सेंटेंस देने वाले जज को दिन दहाड़े मारा गया। यंग सोशल वर्कर सतीश टिक्कू जी को उनके घर के पास मारा गया। लस्सा कौल नाम से एक स्टेशन डायरेक्टर थे दूरदर्शन श्रीनगर के, ही वॉज शॉट डेड। और बीएसएफ पर्सनल एक एमएन पॉल जी थे, उनकी बीवी को किडनैप किया गया, उनके साथ रेप हुआ, उनका मर्डर किया गया। एक एग्जाम्पल जरूर आप लोगों को आज सुनने की जरूरत है। कश्मीरी पोएट थे सर्वानंद कौल प्रेमी, उनको क्यों मारा गया आप सोचिए। उनकी सजा, उनकी जो गलती थी, उनको सजा इस चीज की दी गई थी कि उन्होंने भगवत गीता को कश्मीरी में ट्रांसलेट किया था। ये इतना बड़ा गुनाह हो गया था उनसे, जिसकी नफरत लोगों ने इस तरह से इस 1990s में उतारी। और ये कुछ नाम है, मैं फिर हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो यहाँ पे इतने कम समय में नहीं ले सकती हूँ। उन सभी लोगों के दर्द में हम बिल्कुल बराबर के भागीदार हैं, बट मैं सिर्फ आपको एक पैटर्न दिखाने के लिए नाम बता रही हूँ। ये लोग हमारे लिए सिर्फ आंकड़े नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस या डिफरेंट अथॉरिटीज डिफरेंट आंकड़े हमें देती हैं। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट अलग आंकड़ा देती है, एक इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर ऑफ नॉर्वेयन रिफ्यूजी काउंसिल अलग आंकड़ा देते हैं, और सीआईए के अलग आंकड़े हैं। लेकिन जेनेरिक अगर ऑन एन एवरेज हम समझें तो कम, अगर मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कम से कम 3.5 लाख कश्मीरी हिंदुओं का एक्सोडस हुआ है, मास रेप मर्डर स्लॉटर्स हुए हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है, और शायद सच भी हमारे पास डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आज तक नहीं है, क्योंकि कोई उनके साथ नहीं था, वो लोग अकेले थे। और इसके बारे में अगर हम और अच्छे से जानना चाहते हैं तो फॉर्मर डायरेक्टर जनरल जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के एमएम खजूरिया जी ने भी बहुत अच्छी स्टेटमेंट्स दी हैं, उसको भी हम लोग और ज्यादा डिटेल जानने के लिए पढ़ सकते हैं जो उन्होंने बोला है। वहां उस टाइम के गवर्नर ने, आप सोचिए, उस टाइम के गवर्नर ने ये स्टेटमेंट दी थी कि आपके लिए जम्मू में रेफ्यूजी कैंप्स बन गए हैं, अगर आप जाना चाहते हैं हम वहां पे आपको सारी सुविधाएं दे देंगे, लेकिन अगर आप यहाँ भी रहना चाहते हैं, इफ यू डिसाइड टू लिव हियर, वी कैन नॉट गारंटी योर सिक्योरिटी। आप सोचिए कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारी सरकार है, जिनके हाथ में हम अपनी सुरक्षा रखते हैं, जब उन्होंने ही कश्मीरी हिंदुओं को सुरक्षा देने से इनकार कर दिया, हाथ खड़े कर दिए, तो उनके पास वहां से जाने के अलावा और क्या चारा बचा था। सोचिए, सरकार जिसके खिलाफ हो, समाज जिसके खिलाफ हो, धार्मिक लीडर्स जिसके खिलाफ हो, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, मीडिया, कोई जिनकी मदद ना कर पा रहा हूं, उनका दर्द शायद कोई नहीं समझ सकता। आज हम सोचेंगे कि आज हम क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, हमें बार बार अपने से सवाल पूछना चाहिए, ना ही सिर्फ रेफ्यूजी डे पे, बल्कि रोज हमें अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। देखिए, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रॉब्लम में ही मिलता है। मैं एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, एज अ लॉयर ये बात बोलती हूँ कि ये एक कंसोलिडेटेड, एक कलेक्टिव एफर्ट हम सबको करना पड़ेगा। जिस तरह से उनको वहां से निकाला गया, उस तरह ही उनको वहां पे वापस बसाया जाए। सरकार से हमें बहुत स्ट्रांगली और कलेक्टिवली पूरा दबाव बना के ये अपील करनी चाहिए कि कश्मीरी हिंदूज की रिटर्न, रिहैबिलिटेशन, उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं, मीडिया से हम ये उम्मीद करते हैं कि मीडिया कश्मीरी हिंदुओं की आवाज बुलंद करे। समाज के हर वर्ग को आगे आके आवाज उठानी चाहिए। ये कोई हिंदू मुस्लिम का इशू नहीं है, ये कोई किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी का इशू नहीं है, ये भारत का इशू है। भारत के हर वर्ग को आगे आके कश्मीरी हिंदूज के लिए आवाज उठानी चाहिए, खास तौर से मुसलमानों को। मैं एज एन इंडियन मुस्लिम, मैं इस प्लेटफॉर्म पे भी आई ट्रूली वांट टू अपोलोजाइज whoever is listening to me कि मेरे पंथ के नाम पे, मेरे रिलीजन के नाम पे अगर आप लोगों के साथ इतना अन्याय हुआ और मैं कुछ नहीं कर पाई, अगर मैंने मौन समर्थन दिया या मैं इतने सालों तक इग्नोरेंट रही, तो मैं भी उतनी ही जिम्मेदार हूं। हमें हर रैशनल मुसलमान को आगे आके माफी मांगनी चाहिए, मुसलमानों को एक रिकंसिलिएशन मूवमेंट चलाना चाहिए।
कश्मीरी हिंदूज को उनके सम्मान के साथ वापस स्थापित करने के लिए सबसे पहली आवाज मुसलमान की उठनी चाहिए। मौलानास को, इमाम्स को, जो ट्रूली एक इस्लाम की स्पिरिचुअल एक फॉर्म को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, उनको मस्जिदों में ऐलान करके माफी मांगनी चाहिए। इस तरह से हमें कंसोलिडेटेड एफर्ट करने पड़ेंगे। समाधान सिर्फ कानून में नहीं मिलेगा अजय जी, जैसे आपने मुझसे अभी पूछा था कि क्या सीएए इसका समाधान है। देखिए, सीएए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज के लिए हमारे देश में आया, क्योंकि हम लोग डेफिनेटली सबको सुरक्षित करने वाली एक विचारधारा वाला देश है। इतनी मजबूत हमारी आइडियोलॉजी और हमारी नेशनल एथोस है। कश्मीरी हिंदूज हमारे अपने हैं। सीएए हिंदुस्तान के परसिक्यूटेड लोगों के लिए नहीं है। जब हम कहते हैं कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, तो हमें सोचना चाहिए कि जो भी अधिकार संविधान में, जितने भी अधिकार एक भारत के नागरिक को हैं, वो हर अधिकार हमारे कश्मीरी हिंदुओं को है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में। उसमें जो जो एक एक अधिकार है, मैं डिटेल में यहाँ नहीं बोलूंगी, प्लीज गो थ्रू इट। हर वो फंडामेंटल राइट कश्मीरी हिंदुओं का भी है, उनका स्टैब्लिश होना चाहिए, उनका प्रोटेक्ट होना चाहिए। खास तौर से आर्टिकल 19 में कुछ चंद अधिकार दिए हैं, जिसमें से एक अधिकार है राइट टू मूव अराउंड एंड रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। कौन रोक सकता है कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर में जाकर बसने से? सिर्फ जो कारण उनको रोके हुए वो अपनी सुरक्षा की कंसर्न है कि वो वहां पर अगर जाते भी हैं, उनके घरों का पता नहीं क्या हुआ होगा। तो वो सब कंसोलिडेटेड मिलजुल के जब एफर्ट्स करेंगे, तभी इसमें हम कुछ सोल्यूशन निकाल पाएंगे। एक अपील मैं करती हूँ एग्जीक्यूटिव से कि आपको हम लोग चुनकर लाते हैं, आप भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, भारत की विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्लीज बहुत ही गट्सी डिसीजंस मुझे लगता है कि कश्मीरी हिंदुओं के लिए हमें लेने की जरूरत है। अगर हम सोचें, बहुत जगह मैं समझती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत चीजों से, इंटरनेशनल कन्वेंशन से और बहुत चीजों से उनके हाथ बंधे होते हैं, तरह से एग्जीक्यूट की जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और जुडिशरी से मैं अपील करती हूँ एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कि संविधान में प्रदत्त अधिकारों की, जो सिटीजन्स के अधिकार हैं, उनकी सुरक्षा कीजिए। केसेस खोलिए, जो भी हुआ 1990s में कश्मीरी हिंदुओं के साथ, वो केसेस रीओपन होने चाहिए, मीडिया कवरेज होनी चाहिए उनका ओपन ट्रायल होना चाहिए कि दोबारा से पता चले कि एक्चुअल क्या हुआ था। बिकॉज हम लोग बहुत से युवा यूथ हैं, उस टाइम छोटे थे, हम लोगों को नहीं पता था। आज भारत को ये जरूर पता होना चाहिए कि उस वक्त क्या हुआ था। ऑल दोज केसेस शुड बी रीओपन्ड। सरकार को निर्देश दे, कोर्ट्स, जुडिशरी सरकार को निर्देश देने चाहिए। देन लेजिस्लेचर को आवाज उठानी चाहिए, सख्त से सख्त कानून बनने चाहिए जिसमें कि स्पीडी ट्रायल हो। इस तरह की सेंट्रल एक्ट्स आनी चाहिए कि जो अगर अपने ही देश में लोगों को एक्सोडस हो रहा है, अपने ही देश में उनको रेफ्यूजी बनाया जा रहा है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल लॉज आने चाहिए जो हमारे पास एग्जिस्टिंग लॉज में नहीं है। उसमें डेटरेंट पनिशमेंट होनी चाहिए ताकि लोगों के दिमाग में डर हो। तो सब लोग मिलजुल कर आगे आए। मैं दोबारा बोलूंगी कि ये सिर्फ कश्मीरी हिंदुओं की प्लाइट नहीं है, ये हमारे संविधान की प्लाइट है, ये हमारे संविधान का अपमान है, ये हमारी लॉ ऑफ लैंड का अपमान है। किसी भी देश की जो संप्रभुता होती है, वो 3 चीजें गारंटी करती हैं: एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री, एक कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉ ऑफ लैंड होता है, और वहां के नागरिक। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज वायलेट होती है तो देश की संप्रभुता खतरे में पड़ती है। तो ये लड़ाई हमें मिलकर लड़नी है। दोबारा मैं बोलना चाहूंगी कि कल कश्मीर था, आज बंगाल है, कल केरल होगा, तो वो स्थिति देश में दोबारा उत्पन्न ना हो। तो इसलिए हम इस सब्जेक्ट की सीरियसनेस और अर्जेंसी को समझें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। Thank you, Subhu ji, for powerful words you have delivered. बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, थैंक यू। अब मैं जाता हूँ अपने फिरोज बख्श अहमद साहब के पास। फिरोज बख्श साहब, can you hear us? You have been sure, I am clear. जी, you are a renowned academician and chancellor of Maulana Azad University, Urdu University, and you have written many books and you are well knowledgeable about the subject, about the things. ये बताइए कि ये जो डुप्लिसिटी है गवर्नमेंट की, अपने लोगों का ख्याल न रखना, और दूसरी तरफ से यहाँ पे करोड़ों इलीगल इमिग्रेंट्स है, ये डाइकोटमी क्या है, इसके बारे में और आप क्या कहना चाहते हैं? प्लीज फिरोज साहब। श्योर, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अजय चौधरी साहब
और जो इस वेबिनार में मेरे दोस्त जुड़े हैं, राकेश कौल साहब, उत्पल कौल साहब, सुबुही साहिबा, अमजद मिर्जा साहब, शिफालिका जी, और भी अगर कोई लोग हैं, what I feel is that I think we are just less than 10 people, but it's not a crowd that brings a change. It's only a few people. Even two are enough to bring a change. So I congratulate all of you. I salute all of you who are part of this webinar. And this is a very important webinar. Maybe that certain parameters, certain guidelines out of this webinar, they are reported to the government, because I believe that my Kashmiri brethren, wherever they are living, either in the territory of Kashmir, unfortunately, as Subuhi has mentioned, as migrants, right, or whatever, people in exile or people after the exodus, whatever happened to them, Kashmiris are Kashmiris and they're Indians, right? So, it's almost 30 years. 30 years is a long time to be out of your hometown, of your home state, of your homeland. And I believe that a day will come. Maybe 30 years have passed. None of the governments, so many governments came and they went, but none of them thought of taking care of these Kashmiri, I won't say Kashmiri migrants, Kashmiri Indians, right? Let me tell you, I'll narrate a personal incident from my childhood. When I was a small child, I heard a lot about Kashmir. And I used to pester my parents, my mother especially, because my father was no more. I mean, he lived in Calcutta, and my mother and my aunt, my khala, they brought me up. That's a different story. I do not want to go into the details of that. But they talked a lot about Kashmir being a wonderful state. और मैं गाना सुना करता था जो कि फिल्म आबरू से है, और जिसे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने गाया था। उसकी 2 लाइनें कुछ इस तरह से थी। राकेश जी, आप सुन रहे हैं? बिहाइंड यू आई कैन सी अ वंडरफुल पैच, सीनरी ऑफ कश्मीर जो आपने किया। आई रियली लव दिस। तो गाने की 2 लाइन कुछ इस तरह से थी, हर चेहरा यहाँ चांद, हर ज़र्रा सितारा, ये वादी कश्मीर है जन्नत का नज़ारा। सो कश्मीर used to be Jannat ka nazara. It used to be God's spot. Even today it is. No matter. The snow in Kashmir is burning. As a friend of mine who used to be the editor of an Urdu newspaper daily in Delhi, Chiraghi Saab, Mohan Chiraghi Saab used to be the editor of one English, no, not English, one Urdu daily, right? Qawmi Awaz. He wrote a book in which he said, something like this, that the state of burning eyes or burning soul, something like that. Unfortunately, as Subuhi has also stated, as Rakesh ji has also stated, that in the late 80s, this Jannat actually was actually turned into a hell. Why? Because of communalism, because of, so many organizations. There are deadly organizations in Kashmir these days, right? And these are anti-Islam, these are anti-India, these are anti-Muslim, these are anti-Hindu. These organizations are anti-Kashmiri. And some of these names are, which I have gathered, and you must also be listening to these names, like Al-Jihad, Al-Barq, Hizbullah, Ikhwanul Muslimin. नाम ऐसे ऐसे रखे हैं मुस्लिमीन, जबकि though you will not trust me, Muslims have nothing to do with these people. Then Jamiatul Mujahideen, Tehreekul Mujahideen, Allah Tigers, Al-Umar Mujahideen, and Al-Umar Commandos. और कैसे हैं? I wish that good sense prevails and these people turn into law-abiding Indian citizens and Kashmiris. Now, having said that, let me come to the point. Now, today is the International Refugee Day, and let me tell you, Kashmir has been a land of sadhu sants and saints, right? Saints like Nuruddin Wali, who was generally known as Nand Rishi. All the Muslims and Hindus used to go to his khanqa among the mountains. Then there have been saints like Utpal Deva. Then then Abhinav Gupta was there.
And yes, Mir Sayyid Ali Hamdani was also there. These were very famed Kashmiri saints. They never saw a Hindu or a Muslim in the person's eyes. They just saw a human, right? As Kabir has also said, Kabir said that a person who is standing before me, neither I see a Hindu nor a Muslim, I see a human. So these saints were like this, and Kashmiris are also like this. And in fact, Bhagwan Gopinath was a very famous Sadhu Maharaj. There were women saints also, like Rupa Bhavani was there, Lal Ded was there. So Kashmir actually is a land of Sufi saints and Sadhu sons. Unfortunately, this heaven has been turned into a boiling hot pot. But anyway, I would not speak a lot, but definitely I would say that I also informed some of other my Kashmiri friends. I sent this, message of Aditya Chaudhary ji to some other, friends of mine to join. I do not know. Anyway, my job was to inform them. Say, I have so many people from Kashmiri Pandit fraternity. Till date, they remain my friend. Of course, all of you, Utpal ji, Rakesh ji, you are my friends. And then others are, if I name them a few, if you allow me, Rahul Pandita is one, Shashi Bhan is there, Pankaj Bhan is there, Radhika Kaul, then Sushil Pandit, then Shashi Shekhar Tosha Khani, then Vijay Raina is also a very good Kashmiri Pandit friend of mine. Then Abhay Sopori is there, Amit Kilam, he is an artist. So, like, I have so many friends in my Kashmiri Pandit fraternity. And of course, Sushil Pandit, I forgot his name. And, let me tell you that Kashmiri people are very creative. They are very creative. And in fact, in class, if I remember it correctly, in class 11, a Bengali classmate of mine who was my classmate in MA English, previous and final years, name is slipping. He wrote a wonderful lesson on one of his Kashmiri Muslim friends who settled in Manhattan in USA, and that was a very touching story. So Kashmiri Pandits presence or Kashmiri Muslims presence is there all over the world. Now, what we want is, I also heard in my childhood that Kashmir was also known as what you call, in fact, the Switzerland of India, which it is by all means. And let me tell you, Kashmir is far more wonderful and beautiful compared to Switzerland, even, right? And now coming to the problem, recently I had one of my friends, Mr. Hosbole. He is, in fact, the General Secretary of RSS, and Mr. Hosbole, Mr. Dattatre Hosbole, in one of his lectures, he stated that Kashmiri Pandits should be, in fact, rehabilitated in their homeland, in their hometown. They should go back. And let me tell you, it's a very interesting thing. While he, stated this, the very next day I wrote an article for the Indian Express that, and the title of that article was "Time for Kashmiri Pandits to Go Back Home to the Valley." This was the title. I sent it to the editor of Indian Express. I told him, please carry it. By all means, it should be done by the government. The response that he gave to me was a lukewarm response. These people are also politicians. Neither he refused nor he agreed to take in. He said, just you wait for a while. When something like this starts, then we'll carry it. Anyway, I did my job. I did my duty. Maybe I'll get it published somewhere else. If some of you friends who know some Kashmiri publication, I'll be just only happy to send it over there. Now, having said that, let me also add this thing that there is a lot of movement in Kashmir Valley. Our NSA advisor to the government of India, a very capable person, and I should say a brave man and a big mind. So he is also trying to bring parity in Kashmir. It is at the back of his mind to rehabilitate Kashmiri Pandits in a very safe mode
back to the places where they were. It is very actually have been taken over, and everything has been pounded upon, crushed. It's very sad, right? And another very sad thing which actually has been happening in the state of Kashmir is that the secular schools, especially for girls, they are also being burned. Many schools, a couple of years, they were burnt down, and madrasas were created. I am not against madrasas, right? By all means, madrasas are doing a wonderful job, in fact, to provide education, even if it is religious, and it should be on peaceful lines. However, these madrasas in India, thankfully, are not like madrasas in the state of Pakistan, where they teach that yes, our aim is to annihilate, non-Muslims. Our aim is to convert them into Muslims, proselytization, all these things. Ji, These this madrasas are not that, but radicalization is whatever the it is, problem. Yes. Ji, absolutely, radicalization is communalization and radicalization. ji. Yes, That it is was a the major reason problem in the behind. state of Kashmir. Yes, and they are getting money. Maybe they are getting money from across the border, or from maybe China, from Saudi Arabia. I do not know. This money should stop coming to the state for these purposes. Yes, if the money comes for making playgrounds where children can play hockey, cricket, basketball, table tennis, all these things, that is fine. But if money is coming to to mow down these schools, to burn these schools, and to create radicalized institutions, I'm totally against them. And one more thing, what Subhuhi was saying, that yes, the government should now put its foot down. And I also suggested to Mr. Ajit Doval, I wrote a letter to him, and maybe my word goes to him or to the government, that it is time. This government has some 3 plus years left. All these Kashmiri Pandits, they should, in fact, in a very safe manner, they should be taken back to Kashmir. There should be societies created with, and these should consist Kashmiri Pandits, Kashmiri Muslims, some other people from maybe all over the world. They should see that this movement and what you call exodus, now this should, as we say, brain drain. People who have left India, brain gain. So it should be that drain of Kashmiris, which was in 1989 and later on, it should now become gain for the Kashmiri Pandits. So I would, before I just, wrap up, I'll take a couple of seconds, just, finally, I would request the government of India, I would request a great, I should say, one of the greatest humans who actually are on this earth, that is Ajit Doval Saab. He can do it. And he can do it in a very amicable, very peaceful manner. And there won't be any bloodbath or bloodshed, that these Kashmiri Pandits should be rehabilitated. They should go back to the Jannatul Firdaus, which actually it is. And I believe it is time, Achhe Din, it is Achhe Din for Kashmiri Pandits, but there has to be a resolve, and the government and the system has to take care of it, as Mr. Dattatreya Hosbole has mentioned, because if the word has come from someone like Mr. Dattatreya Hosbole, who actually understands, in fact, the spirit of India, the spirit of Kashmir, the spirit of humanity, I believe that days not long ago, that people like Utpal Kaul, people like Rakesh Kaul, and many other friends of mine, in this program, also Shipalika, they will go back to their hometown. They will reside in their homes. Even if their buildings are burned, God will give them a lot of, support to rebuild them. And having said that, with a couplet of Urdu, I will just take leave. Before you say thanks to me finally, कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना, हाँ बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना. Thank you so much, चौधरी साहब. Thank you, Firoz साहब. बहुत बहुत मेहरबानी. आपने बहुत अच्छा
कपलेट से एंड किया अपनी बात। आपको हमने एज ए स्टूडेंट से टाइम से पढ़ा है और सुना है। Very kind of you. Now I will go to Mr. Amjad Ayub Mirza. Dr. Amjad Ayub Mirza is the renowned human rights activist in London. He is very active in YouTube, and day and night he's working hard to expose the nefarious designs of deep state of Pakistan army and its network of terrorists, their atrocities all over Pakistan, be it Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa, tribal areas, Sindh, and now Gilgit-Baltistan. Mr. Amjad Ayub Mirza is originally from POK, Muzaffarabad, and he is missing Mirpur. He is missing the unified Kashmir, Jammu and Kashmir, and he wants to be a native of unified Jammu and Kashmir. And he prays to the government of India to take care of and take back all the POK and make it under India. So can you please throw some light on your actions, activities, Mr. Amjad Ayub Ali Mirza Sahab, and आप बाकी बात भी रख सकते हैं। Thank you very much for having me on this panel and on this day. I'm, this day, Global Refugee Day, actually also addresses my issues because I am a refugee as well. But I'll try to switch from English into Hindi and Urdu because I think that this seminar is going to be watched by a lot of people in India, and I want to communicate with them directly, and I think all of our panelists understand Hindi anyway. सबसे पहले तो मुझे ये बात क्लियर करने दें कि मैं जो है ना, ये मुस्लिम अपोलॉजिस्ट जो हैं और जो पंडित का जो ये जेनोसाइड है, इसको पंडित प्रॉब्लम कहते हैं बजाय इसको क्राइम कहने, और जो एक्सोडस कहते हैं बजाय इसको मैसेकर और जेनोसाइड कहने के, मैं उनसे मीलों दूर भागना जो है ना वो पसंद करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जैसे इन्होंने कहा कि एक हमारे जो साथ यहाँ पैनल पे मौजूद हैं फिरोज भाई, इन्होंने कहा कि अजय डोवल साहब के बैक ऑफ द माइंड में ये बात है कि हमने कश्मीरी पंडितों को वहाँ उनकी आबादकारी करनी है। तो इससे दो चीजें मैं समझता हूँ कि हमें क्लियर करनी चाहिए अपने आप में। नंबर एक के बैक ऑफ द माइंड में तो ये पिछले कितने वर्षों से 30 वर्षों से बैक ऑफ द माइंड में है। इस मसले को फ्रंट ऑफ द माइंड में लाने की जरूरत है। और दूसरी चीज जो है वो ये है कि कश्मीरी पंडितों के बारे में जब आबादकारी की बात होती है, उनको रिहेबिलिटेट करने की बात होती है, कश्मीर वापस आने की बात होती है, तो वो ऐसे बात होती है जैसे कश्मीरी पंडितों के ऊपर कोई एहसान किया जा रहा है। जैसे कश्मीरी पंडित जो है वो अफगानिस्तान से आए हुए लोग हैं जिनको कश्मीर के मुसलमान बड़े अच्छे हैं कि वो उनको दोबारा एक्सेप्ट कर लेंगे। भाई कश्मीरी पंडित और कश्मीरी हिंदू जो है वो तो कश्मीर के सबसे पुराने और ओरिजिनल मालिक हैं कश्मीर। इस्लाम तो कश्मीर में बहुत बाद में आया। तो इसी तरह से मैं समझता हूँ कि हमारे जो मुसलमान हैं कश्मीर के, वो शर्मिंदा है इस बात पर कि जो पंडितों के साथ हुआ, लेकिन वो इसको कंफ्यूज करते हैं इस चीज के साथ कि कोई मुसलमानों का इनसे ताल्लुक नहीं है। जैसे फिरोज भाई अभी फरमा रहे थे कि ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो टेरर फैला रही हैं, इनका इस्लाम से या मुसलमानों से ताल्लुक नहीं है। तो भाई ये क्या हिंदुओं से इनका ताल्लुक है, ये कोई ईसाइयों से इनका ताल्लुक है, या किसी और बुद्ध मत मजहब से इनका ताल्लुक है? ऑब्वियसली ये इस्लाम के ही बेस पे बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशंस है और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी मुसलमान, क्योंकि ये दिन रात अपनी मस्जिदों से और अपने जो इनके वाज होते हैं उनमें ये कहते हैं कि यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, काफिर जो है उसको हमने खत्म करना है और हमने पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना है, हमने गजवा हिंद कर। तो वो लोग जिन्होंने, कोई एक तो नहीं थे कश्मीर में, वो तो दो किस्म के लोग थे। एक वो जिन्होंने
उन्होंने साइलेंस इख्तियार कर ली, मुसलमानों ने, वो खामोश रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया किसी को बचाने के लिए। जो कुछ एक दो लोग फैमिलीज ने किया, वो फिर कश्मीर में नहीं रह सके, वो भी महाजर बने, उनको भी भागना पड़ा वहां से, कोई जम्मू गया, कोई दिल्ली गया, कोई कहीं गया। तो कहने का मकसद ये है कि सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, इसको हमें जेनोसाइड करार देना चाहिए। और जिस तरह सबूई ने कहा कि 2 नेशन थ्योरी के जो बीज कश्मीर में वो छोड़ गए थे, ये उसका अल्टीमेट फाइनल रिजल्ट था। ये जहर जो भरा गया कम्युनिटी के अंदर, यानी कम्युनिटी को मैं मुर्द इल्जाम नहीं ठहराता, लेकिन कम्युनिटी को नंब किया गया, कम्युनिटी को कंट्रोल किया गया, उनकी साइकी को, उनकी साइकोलॉजी को, उनके वर्ल्ड आउटलुक को कंट्रोल किया गया, मैनिपुलेट किया गया, ताकि वो इस कत्लेआम के दौरान अलूफ रहें, बाहर रहें। और फिर जैसे मस्जिदों से जो ऐलान हुए, तो ये मस्जिदें क्या काफरों की थी? ये मुसलमानों की मस्जिदें थी। तो वहां किसी ने उस मौलवी का गिरबान पकड़ने की जुर्रत क्यों नहीं की? ये जो JKLF का यासीन मलिक और इसके बाकी जो गुंडे हैं, जो लोगों के घरों के ऊपर निशान लगा रहे थे कि ये पंडित का घर है, ये पंडित की दुकान है, इनका हाथ रोकने के लिए कोई मुसलमान आगे क्यों नहीं बढ़ा? तो ये बहुत सारे सवाल आते हैं। इसीलिए मैं समझता हूं कि इसके लिए एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनना चाहिए। जब तक ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन नहीं बनता, कश्मीरी पंडितों की आबादकारी का मसला, और जब तक इसे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करार नहीं दिया जाता ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनली इसको, जैसे आर्मीनिया के जेनोसाइड को वो तस्लीम करते हैं, ऐसे कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड को तस्लीम नहीं करते, ये मसला खत्म होने वाला नहीं। अब मैं आता हूँ अपने हमजा साहब, कता कलाम के लिए माफी, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। बल्कि मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगा, एक पूरी मिनिस्ट्री बननी चाहिए कश्मीरी पंडित को रिहेबिलिटेट करने के लिए, एंड इट शुड बी नेम्ड एज मिनिस्ट्री फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स। जी जी। अब इसमें बहुत ये बड़ी लंबा ये किस्सा है, और मैं आपकी इस बात से भी इत्तेफाक नहीं करता फिरोज भाई। मतलब है, आपका एहतराम है, बिल्कुल आपके पुरखों का भी एहतराम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के तमाम मदरसे जो है बंद होने चाहिए, क्योंकि मदरसे वो नर्सरियां हैं जहां वो माइंडसेट तैयार किया जाता है, जिसको फिर ये आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस हाईजैक करती हैं, वहां से लेते हैं। तो ये हमें पाकिस्तान में मदरसों का बड़ा एक्सपीरियंस है। मदरसा जो है ये नर्सरियां हैं जहाद की और टेररिज्म की, इनको बिल्कुल खत्म होना चाहिए। और कश्मीर के अंदर अजय डोवल साहब को सबसे पहले जो पॉलिसी लानी चाहिए वो है जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स रिलीजियस हेट, यानी कोई बात भी करे अगर किसी के खिलाफ रिलीजियस बुनियादों पे, उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको सजा दी जाए, उसको जुर्माना किया जाए। यूरोप के किसी मुल्क में आप किसी मुसलमान के खिलाफ, किसी काले रंग वाले शख्स के खिलाफ एक बात भी करें ना, तो बेशक आपके पास गवाह ना भी हो, आप ये कहते हैं कि इस शख्स ने मुझे पाकी कहा है या इस शख्स ने मुझे नीगर कहा है, तो वो उसको गिरफ्तार किया जाता है। बाद में फिर तय किया जाता है कि वेदर इट वाज हिज वर्ड अगेंस्ट योर वर्ड और इज देयर एनी एविडेंस इन इट। तो ये कानून हमें वहां लागू करना चाहिए फौरी तौर पर। जो अखबारात जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के बारे में ये छापा, उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, उनके मालकान को, उनको सजाएं होनी चाहिए, उन मौलवियों को सजाएं होनी चाहिए। और उन मस्जिदों से जहां से ये ऐलान हुआ पंडितों के बारे में कि तुम मर्द चले जाए, औरतें पीछे छोड़ जाए, उन मस्जिदों को सरकार को कब्जे में लेकर उनको कम्युनिटी सेंटर बनाना चाहिए, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे जो है उस कम्युनिटी सेंटर को इस्तेमाल करें। ये इतना बड़ा रिजॉल्व होगा तो ये मसला हल होगा। फिर भाई ने बात की, फिरोज भाई ने, मैं कोई सिंगल आउट नहीं कर रहा फिरोज भाई को, लेकिन मैंने उनकी बातें बड़े गौर से सुनी। तो वो फिरोज भाई ने जो कहा ना कि कश्मीरी दुनिया में फैले हुए हैं, तो कश्मीरी दुनिया में क्यों फैले हुए? सवाल तो ये होना चाहिए। पूरी दुनिया में कोई जो है वो जर्मन तो नहीं फैले हुए,
फ्रांस के लोग तो नहीं फैले हुए, हम लोग फैले, इसलिए कि जो एक हमारा वेस्ट जम्मू का इलाका पाकिस्तान के कब्जे में है, वहां ना इंडस्ट्री है, ना अस्पताल है, ना कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है, ना कोई सड़कें हैं, ना कोई रोजगार है, तो लोग मिडिल ईस्ट और यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जाते हैं वहां मजदूरियां करने के लिए। इसलिए आपको सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन के जब आप एयरपोर्ट्स पे जाते हैं तो वहां टॉयलेट साफ करने वाला जो है वो आपको पाकिस्तान का कश्मीर से या जम्मू से ताल्लुक रखने वाला शख्स मिलता है। अच्छा, हम लोग जो है, मेरे वाले साहब जलंधर में थे, डीएवी कॉलेज में वो एफएससी में पढ़ रहे थे। मेरे जो वाले साहब के बड़े भाई थे वो ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार। तो जब ये पार्टीशन हुआ तो हमारा गांव तो था मीरपुर में, तो हमारे ताया जो थे वो सबसे बड़े थे। तो आपको पता हमारे फैमिलियों में तो बड़े बेटे की सुनी जाती है, दादा दादी तो अनपढ़ थे। तो वो उन्होंने कहा कि हमें रावलपिंडी जाना चाहिए, क्योंकि रावलपिंडी जो है वहाँ मेरे वालिद यानी कि छोटा भाई वो पढ़ाई भी जारी रखेगा गॉर्डन कॉलेज में दाखिला लेके, और हम गांव के भी नजदीक हों। तो ये लोग रावलपिंडी आ गए। अभी ये हम लोग एक किस्म के महाजरी होके आए। उसके बाद मीरपुर के में 1960 में अयूब खान जो था मिलिट्री डिक्टेटर, उसने कहा कि हमने यहाँ पे डैम बनाना, और मंगला डैम बना हुआ। उस मंगला डैम जब वो बना तो हमारा गांव बीच में डूब गया। कंपनसेशन के तौर पे उन्होंने हमें जो ऑफर की वो जमीनें थी जो पहाड़ों के ऊपर थी। तो अब पहाड़ों के ऊपर कैसे कोई रह सकता है, तो वो नहीं ली जमीनें, और वहां से गांव भी हमारा, वहां से भी हम महाजर हो गए। उसके बाद पाकिस्तान में इतना हमारे ऊपर तंग हुई जमीन कि हमें फिर महाजर होकर यूपी आना पड़ा। तो कहने का मकसद यह है कि मैं कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, जो उनका एक्सोडस हुआ, जो जेनोसाइड हुआ, मैं उसको बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ और जानता भी हूँ और महसूस भी करता हूँ। क्योंकि मेरे अपने शहर मीरपुर में, जहां हमारे गांव में एक घर मुसलमान, एक हिंदू, एक सिख, एक मुसलमान, एक मुसलमान, एक हिंदू, एक सिख, ऐसे मिलके रहते थे, उस शहर में 25 नवंबर 1947 को 20,000 हिंदुओं का कत्लेआम किया पाकिस्तान के कबायलियों और आर्मी ने मिलके। तो ये जो है, हमें पता है इसका दर्द भी। हमारे वालिद साहब और हमारे दादा जो है रोते थे कि हमारे दोस्तों को मारा, और मेरे दादा को भी जान बचा के भागना पड़ा मीरपुर से, क्योंकि उनके बारे में ये था कि जी ये हिंदुओं का बड़ा वो है, इसीलिए वो पिंडी आए हुए थे और पिंडी में उन्होंने घर वाल किया था किराए। तो अब मैं ये समझता हूं कि सुबुई जो है सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, सुबुई हमें ये बताएं कि हम जो पीओजेके के हैं लोग, ठीक है ना, हम एक इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में एक केस करना चाहते हैं, और वो केस हम ये करना चाहते हैं कि 1947 में हमारे ऊपर जो हमला किया गया ये पाकिस्तान की तरफ से, इसके ऊपर हम चाहते हैं कि ये केस जो है ये किया जाए कि ये वॉर अगेंस्ट अ पीसफुल पॉपुलेशन था। This was a war against humanity. This was a crime against humanity. This was a crime of aggression, and this was a crime against peace. अब मेरे ख्याल सुबह शायद चली गई जी। वो है जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। हम आपकी बात उनसे पहुंचाएंगे। अगर वो नहीं है, आपके बात आगे पहुंचाते हुए मैं आपको और कुछ कहना है डॉक्टर साहब, या कहने कैरी फॉरवर्ड? मुझे सिर्फ ये कहना है कि कश्मीरी पंडित का जो मसला है ये सिर्फ कश्मीरी पंडितों का मसला नहीं है, ये और हिंदुस्तान का भी मसला नहीं है। अगर हिंदुस्तान को इतनी टेंशन होती कश्मीरी पंडितों की तो अभी तक पूरा हिंदुस्तान उठ चुका होगा। ये मसला है जम्मू कश्मीर के हर नागरिक का, ये हमारा मसला है, हमने हल करना है। हमने इसको हल करने के लिए स्ट्रैटेजी बनानी है। हम बार बार अगर यही सोचते रहेंगे कि इंडिया की गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, यूएन ने कुछ नहीं किया, तो भाई यूएन ने और इंडिया की गवर्नमेंट ने तो पीओजेके के लिए भी अभी तक
कोई ठोस कदम नहीं उठाया। लेकिन मैं ये नहीं कहता, मैं उनको इल्जाम नहीं देता, मैं अपने लोगों को कहता हूं कि हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, हमें कैसे आगे लड़ना चाहिए। We should not be apologetic, number one. Number two, इसमें we should not अमजद look साहब towards मैं एक other. मशवरा देना चाहता हूँ आपको। अमजद भाई जी हाँ, अमजद भाई एक मशवरा आपको देना चाहता हूँ। आपने एक बहुत अच्छा इसमें जो है पहलू निकाला है कि क्या हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक केस डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं। आप कहीं भी हो, चाहे कश्मीर में हो, मीरपुर में हो, इंग्लैंड में हो या कनाडा में हो, कहीं भी हो आप, उसमें देखिए ऐसा कर सकते हैं। मुझे पता नहीं सुबह ही इसको सुन रही है या नहीं, खैर वो लॉयर है, शी इज अ प्रोफेशनल। इसमें हम एक काम ये कर सकते हैं कि मैं एज अ मतलब PIL आपका एक समझ लीजिए कि एडवोकेट वो हो सकती हैं, और आप PIL डालने के लिए मैं इसके लिए तैयार हो सकता हूँ। एज एन इंडियन सिटीजन, एज अ ह्यूमन बीइंग, आई कैन सपोर्ट all those Kashmiris who have been haunted out of their hometown and state. I can fight for them in the Supreme Court. I mean, ये सुबोई साहिबा हैं, we wish if she accepts it, तो वो मतलब इसकी वकील बन सकती हैं। डिटेल्स आपको देनी होंगी, हमें कागजात हैं देने होंगे। इट कैन बी वेरी वेल डन इन सुप्रीम कोर्ट। जी मैंने इस साल आना है इंडिया, मैंने कोविड के टीके लगवा लिए हैं, ठीक है ना, तो अब मैंने इंडिया आना है। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। आपकी डिटेल्स, आप अपनी डिटेल फोन वगैरह जो है वो मुझे भेज दीजिएगा, तो मैं आपसे राब्ता करूंगा। मैंने आना है इंडिया, और इंडिया आकर के मैंने यही जो है केस मैंने सुप्रीम कोर्ट में दायर करवाना है, और आप अगर साथ होंगे तो जाहिर है ये बहुत बड़ी हमारी मदद होगी। हमने ये केस करना है पाकिस्तान पे। श्योर डॉक्टर साहब, बहुत बहुत मेहरबानी, आपकी इमोशनल बातें, आपका दर्द हमारा दर्द एक ही दर्द है, और इसको हम आगे देख नहीं, ये गलत बात है। आपने मेरी बातों को फौरन ही इमोशनल कह के उसको टैग लगा दिया है, यानी इमोशनल बात है, ठीक है, खून गर्म है, यानी कि ये इमोशनल बात नहीं है। ये बात जो मैं कर रहा हूं, इसको आप इमोशनल कह के जो है ना वो उधर साइडलाइन ना करें प्लीज। ये ही असल बात है जो मैं कह रहा हूं, बाकी तो सारी अपोलोजेटिक बातें हैं। जी 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 जी, ये दर्द की बातें हैं, बिल्कुल सर। थैंक यू वेरी मच अमजद साहब। नाउ आई गो टू उत्पल जी। उत्पल जी, कैन यू हियर अस? Yes, very much. Utpal ji, with the given situation, with the latest political engagements of the government of India, with the same leaders of Kashmir who were, 2 years back house arrested, now the new situation is emerging. Under these situations, what is the way forward? What are you asking the government, and what are you not thinking that we are being again sidelined by the government of India? The issue and the demand of one place settlement we have been highlighting always, plus the appeasement, the policy is being, it seems is going ahead, and Jammuites are being sidelined. With these issues, how can you throw the light on the whole issue? नमस्कार, फिरोज बख्श साहब, सुबही खान मैडम, डॉक्टर अमजद अयूब खान साहब, राकेश जी और शफालिका जी और अजय चौधरी जी। आज मैं आपको बता दूं कि बहुत ही नसीब वाला हूं कि आपसे रूबरू हूं, आपसे बात करता हूं, क्योंकि हो सकता था कि मैं आपके साथ बात नहीं कर सकता, क्योंकि जो हालात 89-90 में थे, उन हालातों में मेरा जिंदा कश्मीर से निकलना बहुत ही मुमकिन नहीं था। मैं स्टूडेंट एक्टिविस्ट था, स्टूडेंट हिंदू माइनॉरिटीज स्टूडेंट्स यूनियन का मैं प्रेसिडेंट था, और बहुत ही पूरे कश्मीर वैली में नजर में था। लेकिन ऊपर वाले का खेल था कि मैंने कुछ काम करना था अपने मुल्क के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, तो मैं जिंदा बचकर आ गया। अगर हालात उस टाइम के बयान किए जाएं तो 10
हॉलीवुड की फिल्में बन सकती हैं कि क्या ऐसे हालात हो गए। दुनिया भर में खाली एक मिसाल है जहां 5% माइनॉरिटी को इन हालातों में पहुंचा। विद इन 2 months लगभग 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को रिफ्यूजी बना दिया। और वो भी कैसे? अपने मोहल्ले वाले, अपने दाएं बाएं वाले ने ही घर पर चस्पान की लेटर कि कश्मीर छोड़ दो नहीं तो हम आपको मार देंगे। और ये कोई मजाक नहीं था, दे वर सीरियस एंड दे स्टार्टेड किलिंग। ये दुनिया भर में कहीं भी एग्जाम्पल नहीं है कि 5% माइनॉरिटी जिनका 0% क्राइम रेट है, 0% क्राइम रेट। हमारा एक भी आदमी कोई सेंट्रल जेल में नहीं था, कोई क्राइम ही नहीं है हमारी कम्युनिटी में। इट वॉज कम्युनिटी ऑफ टीचर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स जो पढ़ाते थे पूरी कश्मीर की कौम को, हिंदू को, मुसलमानों को, सिख को, हर एक को। और इन्हीं को जो हम कश्मीर में मैं तो बोलूंगा 10,000 साल, 20,000 साल से, जब से कश्मीर है तब से कश्मीरी हिंदू कश्मीर में था। जैसे आपने बताया इस्लाम को तो 850 साल हो गए कश्मीर में आते। हमारी जो हिस्ट्री है, द ओनली हिस्ट्री रिटन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज फ्रॉम कश्मीर राजतरंगिनी, नीलवत पुराण। हमारे रिकॉर्ड्स हैं, हमारे एमिनेंट स्कॉलर्स थे and people from China, from Southeast Asia, they were coming to study in Kashmir because Kashmir was Sharda University. Such a brilliant thing. और इसी को खत्म किया गया आस्ता आस्ता। मार्तंड टेम्पल, आर्ट, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, लिटरेचर, फिलोसफी, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो कश्मीर में नहीं थी। और उसके साथ साथ कश्मीर में ऊपर वाले ने तो इतना हुस्न बख्शा है कि पैराडाइज है, स्वर्ग है। 1990 में कुछ महीनों के अंदर अंदर 5 लाख लोग कश्मीर से निकले और जम्मू के सड़कों पर थे, जिनको आप बाद में बोलते हैं कि माइग्रेंट्स। मेरे ग्रैंडफादर कश्मीर और इंडिया के पहले बर्ड वॉचर थे। उन्होंने बर्ड्स ऑफ कश्मीर लिखी आज 100 साल पहले। और मुझे पता था कि माइग्रेंट वर्ड का मतलब क्या होता है। माइग्रेंट इज बर्ड्स, birds are migrants, human beings are never migrants, and we are refugees. And we took this demand at that time that don't call us migrants, we are refugees. लगभग 15,000 से 20,000 मकान हमारे जलाए गए। हमारे 1500 में से 600 से 700 मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया गया। जमींदार जो थे उनकी जमीनें छीनी गई, उनका कोई पता नहीं कि जमीनें कहाँ है। जिसका छोटा मोटा कारोबार था सब कुछ खत्म हो गया। जो अपनी दाल रोटी, हम कश्मीरी में बोलते हैं हाक बत, जो हम अच्छे से खाते थे, वही सड़कों पर आ गए लोग। और मैं आपको बता दूं, जो यहाँ की सियासी जमातें थी, चाहे वो कांग्रेस था, चाहे कम्युनिस्ट थे और पार्टियां, वो मुझे बोलते थे आस्ता बोलो, चुप चुप करके बोलो, मीडिया में मत जाओ, ये मत बोलो कि कश्मीर में क्या हो रहा है। और देवर गैंगिंग अस दैट वी शुड नॉट, आग लग जाएगी, सारे हिंदुस्तान में आग लग जाएगी, आप मत बताओ कि आपके साथ क्या हुआ है। लेकिन छोटी सी कम्युनिटी ने अपनी बात 90 से आज तक रखी है। हमने कोई भी ऐसा, मैं सारे प्रेसिडेंटों से मिला हूं, मैं सारे प्राइम मिनिस्टरों से मिला हूं, मैं सारे अपोजिशन लीडरों से मिला हूं। मेरा मतलब है मेरी कम्युनिटी के साथ, मेरी कम्युनिटी मिली है और अपनी बात रखी कि देखिए हमारे लिए कुछ कर लीजिए। और हमने एक तरीका निकाला, क्योंकि अब ये पॉसिबल नहीं है कि हम पूरे वैली में रहते थे। पूरी कश्मीर वैली में कश्मीरी हिंदू रहता था। अनंतनाग में, बारामूला में, सोपोर में, कुलगाम में, कुपवारा में, रैनावारी में, हवा के दल में, हर एक जगह हम रहते थे। लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं हो गया, बिकॉज देयर इज ए ट्रस्ट डिफिसिट। हमारे साथ जो जेनोसाइड हुआ,
वो जेनोसाइड इट वाज अनपैरेलल। हिस्ट्री में, इतिहास में, तवारीख में ऐसा जेनोसाइड देखने को नहीं मिला है। क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि हम कोई 45% पॉपुलेशन नहीं थी, हम 40% पॉपुलेशन नहीं थी, 95% are responsible. I can say, although it is Pakistan sponsored, it is some kind of jihadis who did it, but the blame goes to the majority community कि वो क्यों नहीं आगे आए हमको बचाने के लिए, और हमारे लोगों को मार दिया। मार कैसे दिया? जेनोसाइड, आरी से किसी को काट दिया गया। और एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूं। तो मतलब ऐसा है कि हम बात कोई इमोशनल नहीं कर रहे हैं, हम लॉजिकल बात करते हैं। मैं बिल्कुल डॉक्टर अमजद साहब के साथ बिल्कुल इनके साथ इत्तेफाक रखता हूं कि मतलब ये कोई इमोशनल वाली बात नहीं। दीज आर फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री एंड वन हैज टू एक्सेप्ट दीज फैक्ट्स, whether it is government of India, whether it is government of Jammu and Kashmir, whether it is UN, or whether it is National Human Rights Commission, or whether it is Human Rights Commission in Geneva or otherwise. They have to listen to us. They have to give justice to us and give justice to our genocide. हमारे साथ जो genocide हुआ है उसका निवारण करना है। ये इन सरकारों की और जितने भी ये एजेंसीज है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, वो हमारी बात कभी नहीं करते। वो टेररिस्टों की बात करते हैं बिकॉज वो मोटिवेटेड है किसी न किसी तरीके से। मुझे अजय जी ने सवाल पूछा कि आज सब इस वक्त जम्मू कश्मीर में हलचल चल रही है कि 24 तारीख को मोदी साहब ने पॉलिटिकल पार्टीज जो है जम्मू कश्मीर की उनको बुलाया है गुफ्तगू करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे लिए कुछ नहीं बदला, हमारे लिए कुछ नहीं बदला। जो हमारा 90 में हाल था वही आज भी है, क्योंकि हम अभी भी जगती के कैंप में, पुरखू के कैंप में, भूटा नगर के कैंप में हम कश्मीरी रह रहे हैं। तो इसलिए हमारे लिए तो कोई बात नहीं है, कोई हमारे लिए कोई प्रोग्राम नहीं दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और हमने क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बोला है? हमने बोला है साहब हम ऐसे नहीं रह सकते, आप हमारे लिए एक वी वांट टू लिव इन अ वन प्लेस सेटलमेंट। ये जीकेपीडी का है और कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का वन रेजोल्यूशन है, 1 point resolution that we want to live at one place. So you can call it smart city. You can, because I say it proudly, if you allow us to live and we will make a new city in Kashmir, and that will give challenge to Singapore, that will give challenge to Hong Kong, क्योंकि हम बड़े मेहनत का श्लोक है, हम बड़ी मेहनत और शिद्दत और ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं, और जो भी कश्मीरी जहां कहीं भी है वो अपने काम अच्छे से करेगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि हमारी बात को सीरियसली ले ले, चाहे वो अजीत डोवाल साहब हो, चाहे वो मोदी साहब हो, सारी अपोजिशन, सब लोगों को ये मिलकर तय करना चाहिए कि जो हजारों सालों से कश्मीर हमारी मातृभूमि है, इट इज आवर मदरलैंड, इट इज आवर प्लेस वेयर वी आर ब्रॉट अप, एंड हमारा डीएनए जहाँ का है, हम वहाँ वापस जाना चाहते हैं। लेकिन हमारी एक ही डिमांड है, और वो भी कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, वो इट इज वेरी वेरी मच पॉसिबल दैट वी वांट वन प्लेस सेटलमेंट। मैं आज 92 का फोटो देख रहा था कि उस दिन भी हमने रिफ्यूजी डे मनाया था, और हमने वो बनाया था इंडिया गेट पर। मैं अगले 30 साल में भी दूसरा प्रोग्राम में नहीं आना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट ईयर सारे कश्मीरी पंडित कश्मीरी हिंदू वापस चले जाएं, और वापस कहां? एट वन प्लेस सेटलमेंट, जिसको आप स्मार्ट सिटी कहिए, आप होमलैंड कहिए, आप कुछ भी उसको कहिए, जो हम कश्मीर में वहां रहेंगे, बसेंगे और आराम से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you Utpal ji for your way forward vision, and I just wish to say that this is a pan, not only Kashmir problem, this is pan India, this is pan world.
Amjad Bhai will agree with me. We have a very serious problem, not only in Kashmir, but all over India. And we had I recently meet Romas. Romas are the gypsies who have left India 500 years back. There are hundreds and thousands of gypsies all over Europe and maybe in America also. So the problem lies in radicalization and this demographic changes. I wanted to give the second session to everybody, but we are running short of time. Rakeshji, would you like to conclude with something? I give you just 2-3 minutes, please. So very quickly, I'll just build on what Utpalji said by placing a few facts for each of the major players. Because it's World Refugee Day, let me start with the Kashmiri Pandit community. In 2018, there were 9,602 refugees from India that were granted asylum. And there were 51,812 pending cases of asylum seekers from India. Kashmiri Pandits, who probably have the greatest claim, not one took advantage of the protection afforded by international law. So that is something for our community to introspect on. Now let me address the issue of our brothers and sisters, community in Kashmir, and give you an explanation of why they have been silent. In modern times, the first call for genocide of Kashmiri Pandits was made by Sheikh Abdullah. He did it in 1933, where he gave a speech in the town of Tragapura. And there he, in a public speech, laid out the mission of the Muslim Conference and exhorted the Muslim community to turn out the Hindus who he said had from times past been giving the Muslims trouble, and told the crowd who had assembled there to take revenge on the Pandits. These were the Pandits who, let me remind the world, on World Refugee Day, gave the Muslim refugees coming out of Iran sanctuary in Kashmir, because we Kashmiri Pandits have big hearts. We believe the world is at that. Correct. That's where the trouble started for us. But why weren't these Kashmiri Muslims silent? The answer is in one simple sentence. Genocide can be extremely profitable to the genocider. Our estimate, which nobody has cared to share, is that the windfall genocide profit to the majority community in 1990 was around $26 billion of asset value in today's term was taken by them. When you are the beneficiary of $26 billion in today's market value terms, are you going to speak against it? No, you're not going to speak against it. You're going to be complicit because you're a beneficiary of that genocide. Correct. So that is the reason why they are quiet. Now, in terms of the government, the fact is this BJP government
has demonstrated a lot of goodwill to the Kashmiri Pandits. They have removed Article 370, they have removed 35A. These were necessary steps. But while they have demonstrated goodwill, they have not demonstrated good faith. Good faith begins by recognizing Kashmiri Pandits as internally displaced people, recognizing that they are the victims of genocide, recognizing that they have to sit with the community and figure out a pathway that will give full justice, not just to the people who are alive, but for me, what is very important, the 1,600 innocent Kashmiri Pandits who were slaughtered in January 1990. We have the name, we have the place, we have the torture that each one of these Kashmiri Pandits suffered. Let us not forget, Subhuji gave a few names, but there were 1,600 Kashmiri Pandits that were slaughtered all across the valley. This was not a few people that went mad. When Dr. Amjad Ayub says, these were factories that were built all over the valley, he's dead right. Correct. And lastly, we have to recognize that we're not the only victim. That's why GKPD's global concert, Eksath concert, was a magnificent evolution in our thinking, that there are other sufferers. And if we join hands with other sufferers, we become stronger in our cause. And the other sufferers in Kashmir are the Kashmiris of Pakistan-occupied Kashmir. Can you believe it that Kashmiris go to third-rate Pakistani educational institutions to get educated and brainwashed? We don't allow the people from Pakistan-occupied Kashmir, from Gilgit-Baltistan to come into India and get educated in India. So this mindset that we have given up the people of Pakistan-occupied Kashmir is wrong. And therefore, we have to continue in the direction that has been laid out by this August panel. We will never compromise on our inalienable rights in Kashmir. And when I speak of Kashmir, I speak of unified Kashmir. And I dream of the day that we will all meet Feroz Bhai, Amjad Bhai, Shafalika, Ajay, Utpal in Shardapi, in Kishanganga Valley, and salute the goddess who for 1,000 years made Kashmir the beacon light of humanity. Thank you. Thank you, Rakeshji. Thank you very much. Now we have run out of time. I want to just conclude by a poem which was narrated by Shri Premnath Shad, headmaster in Yechigam, Badgam, Kashmir, when he was leaving the Kashmir in 1990. He said, I let go of my home and possessions and left. I gave up my bonds of lifetime and left. Adorned my cow with a wreath of marigolds. I fed her a handful of dry fodder and left. Tethered my 7-day-old calf to a rope. Kissed it, hardened my heart and left. This is the story of 500,000 Kashmiri Pandits forcibly removed out of Kashmir and our genocide. I thank all my distinguished panel today, Mr. Firoz Bakht Ahmed Saab, Subui Khan Sahiba, Dr. Amjad Ayub Mirza from England, Rakesh Kolji from US, and Utpal Kolji. Thank you very much, everybody. Namaskar. And Dr. Shafalika, of course. Namaste. Ajay ji, the last Mr. Ajay, the last 2-3 lines, which you said about Kashmiri Pandit, and you said that this is the state of affairs with all the Kashmiri Pandits who have been scattered all over.
So can you send those lines in written on my WhatsApp? That he kissed his cow, Sure. all these things. So Sure. please. I will write. I think I will Thank mention you very those. much. I will mention those in my article. Okay. Thank you very so much, much. sir. Thank you, Ajay ji. Namaskar, everybody, for wonderful moderation. Thank you to the panel. I just want to conclude by saying that we are among 48 million internally displaced people who are living in the world, according to the IDP committee, which also states that each one of the internally displaced persons should be rehabilitated with dignity and honor back to their homeland. So on that positive note, thank you all for joining on behalf of Global Kashmiri Pandit Diaspora. Thank you. Thank you, Doctor.